Better word, yoga. It does a great miracle. It won't be wrong if I called yoga a Ramban, the panacea. Why? Just because it has the power to cure all the diseases in the world. It not only keep you physically healthy, but also calms your mind and soul. So with this, a very warm afternoon to one and all present over here. Today, as you all know that every year on 21st of June, we just observe, the whole world observe World Yoga Day. And as a part of the same, today we are observing Yoga Week. And today's workshop, it is being based on the same, that has been based on theoretical application of yoga. So with this, now I would like to welcome our guest speaker, Dr. Urmila Pandey ma'am, who is the director of Nirmaya Yogam Research Foundation, Haridwar, Uttarakhand, who has got connected with us through online. And today ma'am is here to give us a very valuable information regarding all this yoga, because yoga is a part of our life. And before this, I would like to welcome all the dignitaries of KIPM Technical Campus, along with my colleagues and students. So please welcome them all with a huge round of applause. Now, before proceeding with the workshop, I would like to say a few words for ma'am, because ma'am phrases has got no end. It doesn't need any introduction, but still it's my privilege that I'm here to speak few words for ma'am. Dr. Urmila Pandey ma'am, the director of Nirmaya Yogam Research Foundation, who is an expert of yoga and has qualified her PhD degree from Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. She is an expert of yoga and has cosmic healing also. She is expert in that as well. She has an experience of 15 years of teaching yoga from Sanskriti University. She has also accomplished many of her national and international, your projects and assignments. And at the same time, now she's acclaimed as a yoga expert throughout the world. Apart from this, she's also associated with number of educational institutions as a faculty, as a visiting faculty. So ma'am, I think the day is going to get an over, but the achievements what you have made in your tender age, it has got no end. So with this, I would like to request you to drench all our audience and all of us with your vast experience and knowledge related to healing, cosmic healing, and also about the wonderful life which we can lead with the help of yoga. So ma'am, please, few words from your side. Thank you, ma'am. I pay my gratitude to all my seniors, and especially I am very thankful to organizing committee, KIPM Technical College. और आपने हमारे बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, मुझे अपने बारे में कुछ कहने की अब जरूरत नहीं है। आप लोग जो महसूस करेंगे बस मैं वही हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। धैर्य बनाए रखिएगा और कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम एक प्रेयर करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप में स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपने आप को कंसंट्रेट करें प्रेयर के साथ।
ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का हमारा टॉपिक है कॉस्मिक हीलिंग। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है। जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी व्याप्त है उसको हम प्राणिक ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को किस तरह से हम लेते हैं और आपकी बॉडी में उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ये आज का विषय है। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इस विषय से पहले कि आपको पता है कि आप सभी का विजिबल बॉडी है, स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। हमारा ये जो शरीर दिख रहा है वह केवल एक स्थूल शरीर ही नहीं है। जैसे मकान बाहर से दिखता है, अंदर उसमें रहने वाले लोग हैं, और जो अंदर रहने वाले लोग हैं वो कितने हेल्दी हैं, कितने अच्छे हैं, उससे उस मकान की सुंदरता है। खैर, एक सिंपल सा एग्जाम दिया मैंने। उसी तरह से आप जब प्रॉब्लम में होते हैं या आपके अंदर कोई बीमारी हो रही होती है तो उसकी वजह होती है कि सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी या इन्फेक्शन आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया होता है और सूक्ष्म शरीर से धीरे धीरे वो स्थूल शरीर यानी कि विजिबल बॉडी में आता है। तो जो योग ये जो टॉपिक है थेरेपेटिक एप्लीकेशंस, योग में योग साधना के साथ साथ योग साधकों ने हर एक आयाम को प्राथमिक उपचार या कहिए कि किसी भी प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए उपचार के रूप में पहले लाइफस्टाइल में इसी तरीके के थेरेपी लिए जाते थे। तो प्राणायाम भी एक थेरेपी है, आसन भी एक थेरेपी है और एक्यूप्रेशर भी एक थेरेपी है। उसी तरह से कॉस्मिक हीलिंग भी एक थेरेपी बन के सामने आया हुआ है। पहले ये चूंकि बहुत सेक्रेट विद्या मानी जाती थी तो इसकी जानकारी ऐसे लोगों को दी जाती थी जिसको इसमें विश्वास हो, जो इसके लिए एलिजिबल हो, इन द सेंस टैलेंटेड हो, उन्हें दिया जाए, जिससे कि किसी भी विद्या का उपहास न हो। आपको ये भी पता है कि विद्या एक आत्मनिष्ठ विषय है। आप विद्या को खरीद नहीं सकते हैं। विद्या और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा आप डिग्री से लेते हैं, पर विद्या जो है, एक सेकंड आप ना पीपीटी ऑन करेंगे, बैठ जाओ। तो विद्या और शिक्षा में अंतर है। जैसे कि मैंने कहा कि विद्या आपकी आत्मनिष्ठ से है, आपकी अंदर की एनर्जी से आती है, और एजुकेशन जो हम डिग्री से लेते हैं वो हम समान रूप से सबको उसमें एक्सपर्ट बनाते हैं। तो कुछ हमारी ये विद्या भी है और कुछ हमने अपने डिग्री के समय में अपने सीनियर्स गुरु लोगों से सीखा भी है। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से इसको क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि अभी मैंने कहा कि हमारा स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों मिल करके हमारे शरीर को बनाता है। उसी जैसे आप हमारे थॉट्स को कहें, थॉट्स क्या है, हमारे सूक्ष्म शरीर का प्रमाण है, और जो हमारे एक्शन है वो हमारे स्थूल शरीर के प्रमाण है। तो कॉस्मिक हीलिंग में
जो ट्रीटमेंट शुरू होता है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी यानी कि इनविजिबल बॉडी से शुरू होता है। और इनविजिबल बॉडी से शुरू कैसे होता है, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि हर एक का अपना वाइब्रेशन होता है। हम अनजाने में भी बहुत सी वही चीजें करते हैं जो किताबों में लिखी हुई हैं और जो और लोगों से शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर आप उसको जानकर उसको समझ कर करते हैं तो आप अलर्ट होकर उस कार्य को कर रहे होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको पता है कि फला व्यक्ति का वाइब्रेशन बहुत अच्छा है, उसके पास बैठने में बहुत अच्छा लगता है, और या फिर फला किसी का वाइब्रेशन इतना नेगेटिव है कि वहां से एकदम मन खराब हो जाता है। तो ये वाइब्रेशन क्या है, या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ी हुई है किसी भी तरह से, क्योंकि इसमें दो ही चीज है, कॉस्मिक हीलिंग में दो ही चीज है, हम पॉजिटिवनेस बढ़ाते हैं, नेगेटिवनेस को माइनस करते हैं। कैसे माइनस करेंगे, अगर हम माइनस चीज को नोट नहीं कर रहे हैं, तो ये कहा गया है कि जो हमारा इनविजिबल बॉडी है जब वो इफेक्टेड होता है नेगेटिव चीजों से, कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, आपकी डिजीज है, आपका कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कंटिन्यू आपकी बॉडी में बना हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो हम सभी लोग हैं, कभी कभी आपका जो नेगेटिवनेस है वो भी कहीं अच्छा वर्क करता है। तो खैर, तो इन्होंने बताया है कि जो आपका ऑरा है आपके पॉजिटिवनेस का प्रमाण है और वो आपके बॉडी के चारों ओर फैला होता है। और जो हम हील करते हैं, हम रेस को लेकर के विजिबल बॉडी से इनविजिबल बॉडी तक उसको प्रूव करते हैं। Aura gives the energy circle around the body. It is also called bioplasmic body. आप इसको देख ही रहे हैं। और इसके बाद फिर ये है हमारा एस्ट्रल बॉडी। वही बात जो भी हमने कहा कि bioplasmic rays और aura penetrate through the surface of the physical body. अब जो bioplasmic rays है वो हमारे कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है और अपने बॉडी के सरफेस तक उस इनर टू आउटर लाता है। और हर एक का होता है, अगर आप विश्वास करें, अभी मैं आपको थोड़ा डेमो दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो रेंज है रेस की वो 1 मीटर तक होती है फिजिकल बॉडी से, इनर बॉडी से आउटर बॉडी में आता है, इनर सरफेस से आउटर सरफेस में आता है, और आपके बॉडी के चारों ओर एक आउटर लेयर बनाता है, और वह लेयर आपके नेगेटिविटी को रोकता है दूसरे को तक पास होने में। अगर आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऑरा बहुत अच्छा है, तो आपका नेगेटिविटी रोकने का क्षमता बढ़ जाता है। अगर आपके पास कोई फेंक के जाता है या किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करता है, तो आप अपने पॉजिटिवनेस से उसको कट कर देते हैं। इसलिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपका हेल्दी होना बहुत जरूरी है ऐसे वातावरण में जहां पर नेगेटिव लोग रहते हैं। अपने आप को सेव करने के लिए, डिजीज से सेव करने के लिए, नेगेटिव मतलब पर्सन से मतलब नहीं है। नेगेटिव मैंने पहले भी कहा कि हमारे अंदर खुद पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, हम अपने आप को बराबर मोटिव करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ये चीजें चलती जाएंगी इसमें। अच्छा, अब ये ऑरा जो है किस पे वर्क किस पे करता है, जैसे हमारा जो विजिबल बॉडी है, विजिबल बॉडी के साइंटिफिक सपोर्ट सिस्टम है जिसको हम सभी बॉडी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको हार्ट में पेन है तो आप हार्ट पे हाथ रख रहे हैं, ब्रेन में है हेडेक है तो रख रहे हैं, लेकिन इनविजिबल में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वो पता नहीं है, तो आप कहेंगे कि जब हमें पता ही नहीं है वो कॉन्सेप्ट तो हम कैसे इसको समझें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको भी पता है, क्योंकि साइंस एंड फिलॉसफी, आप सभी जानते हैं कि फिलॉसफी विजन है एक सृष्टि को प्रूव करने का, सृष्टि को आगे बढ़ाने का, और साइंस एक टेक्निक है। जो आपको महसूस हुआ वही उसको महसूस हुआ, वही उसको महसूस हुआ, वही उसको महसूस हुआ, स्टेप बाय स्टेप, तो ये साइंस है। लेकिन फिलॉसफी ये नहीं है, फिलॉसफी अपनी अपनी सबकी होती है। तो यही फिलॉसफी आपका स्पिरिचुअलिटी है, जो आपके अंदर से, जो आपने मीठा अनुभव किया उतना ही मीठा कोई और अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा गया है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। तो अब हम आते हैं हमारे इनविजिबल यानी कि जो ऑरा जिस पर वर्क करता है, इनविजिबल बॉडी की पार्ट्स चक्रास है। चक्रास हैव आल्सो देयर पोर्स, नाड़ी एंड मेरिडियन सिस्टम।
ये 11 है। आप देखें हमारी बॉडी के जो 7 सिस्टम हैं उनका भी एक सेंटर है, यहाँ से पीनियल है या पिट्यूटरी है या थायराइड है या थाइमस है, फिर पेंक्रियाज है, गोनाड्स है, वगैरह वगैरह सारे अपने हार्मोन सिस्टम है। तो जो जो हार्मोन सिस्टम जहाँ से सेपरेट होते हैं वो हमारे बॉडी के सपोर्टिव सिस्टम भी है, ऑर्गन्स भी है। अब आप कोरिलेट अगर करें तो हम जो सहस्त्रधारा चक्र कहते हैं, सहस्त्रधारा चक्र, सहस्त्रधारा चक्र कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो कहते हैं कि वो बिल्कुल माया से दूर होता है, इस संसार से दूर होता है, अभी उसका कनेक्शन स्पिरिचुअल से होता है। तो यहाँ पे बहुत तेजी से तब तक होता रहता है, फिर धीरे 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 हार्ड हो जाता है, बट वो चक्र का स्पेस है, सहस्त्रार चक्र, वो पीनियल ग्लैंड है। फिर आप आगे बढ़िए, इधर आइए, पिट्यूटरी है, ये आज्ञा चक्र है। इसी तरीके से सारे हमारे चक्र हैं जो एक दूसरे से कोरिलेट हैं, और इनको कॉस्मिक हीलिंग में हमने 11 बताया हुआ है। नाभि चक्र, कटी चक्र, फ्रंट स्प्लीन, बैक स्प्लीन, सोलर प्लेक्सेस लेकर के आज्ञा चक्र और फॉरहेड चक्र, क्राउन चक्र, क्राउन चक्र हमने सहस्त्रार चक्र को कहा, ये हमारे चक्रास हैं। इन चक्रास से रिलेटेड सिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो उससे रिलेटेड डिजीज होती है। इन रिलेटेड चक्र से जो हार्मोन्स हैं वो जब इम्बैलेंस होते हैं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। हमारा बॉडी सिर्फ ये जो विजिबल बॉडी है ये तो बस एक सुंदरता है, लेकिन अंदर से सिस्टम अगर खराब है तो ये सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी, वो आएगी ही नहीं बाहर सुंदरता निकल के। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कॉस्मिक एनर्जी कार्य करता है लेकर के बाहर से लेकर, जैसे आज आप इंजेक्शन देते हैं तो दर्द खत्म हो गया, एलोपैथ है, बिना एलोपैथ के चल नहीं सकते हम, तो उसी तरीके से ये भी एक थेरेपी है। हम प्रोजेक्ट करते हैं कॉस्मिक एनर्जी आपकी बॉडी में, उस रिलेटेड अंग के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। अब मेन क्या होता है? रूट कॉज। रूट कॉज को सबसे पहले हम समझते हैं कि जड़ क्या है। जड़ क्या है बीमारी की? बीमारी की जड़ हमारे चक्र से शुरू होती है। हमें आंख में दर्द है तो आंख का सपोर्टिंग चक्र, ये जो मेजर चक्र हैं, चक्रास हैं, इनके माइनर भी हैं। अगर हमें हेडेक हो रहा है तो हम आज्ञा चक्र को तो ट्रीट करेंगे ही, साथ ही साथ इसके माइनर चक्र भी हैं। वो डिटेल्स बहुत जाते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होगा तो आपको जब थेरेपी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे अच्छे से? एनी पर्सन? यस मैम। अगर मैं ही बोलती रहूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आवाज चला जाए और आपको सुनाई ना पड़ रहा हो, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो मैं कहाँ तक पहुंची थी? जो हमारे चक्रास और नाड़ी, शरीर की सूक्ष्म नाड़ी तंत्र, उन पर वर्क होता है थेरेपी का, रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और एक सिद्धांत है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो हम कहते हैं कि वहां पे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो गई है, पॉल्यूशन वहां पे कलेक्ट हो गया। पॉल्यूशन कैसे कलेक्ट होता है? कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम होगी वहां पे ऑक्सीजन का संतुलन कम होगा, सर्कुलेशन कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन कम होगा। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग आएगी तो वहाँ पे टॉक्सिक कलेक्ट होगा, टॉक्सिक कलेक्ट होगा, ब्रेन मैसेज लेगा, ब्रेन मैसेज लेगा, पेन होगा। और अगर आप उसको इग्नोर करते गए तो वो संबंधित अंग पहले इनर खराब होता है, फिर आउटर खराब होता है। तो ये तरीका है इसमें कि ये सिस्टम कैसे खराब होता है आपके सूक्ष्म शरीर के खराब होने से। The living body consists of small chakra, भी जैसे मैंने कहा, which give energy to the physical body and control them by penetrating the physical body. They come out from the front. अभी मैंने इसे भी बताया आपको। Negative emotion cause instability in the living organism. अब आप देखिए कि ये किन किन तरह से आपके ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करते हैं। लैक ऑफ लाइफ फोर्स, ब्लॉक सिरा बिंदु, वही जो हमने कहा कि पॉइंट्स जो हैं, सूक्ष्म पॉइंट है, चक्रास नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। हम स्कैन करके पता कर लेते हैं कि आपके चक्र अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, कुछ इसके
प्रिंसिपल भी है ट्रीटमेंट के, प्रोटेक्टिंग सेल्फ फ्रॉम डिजीज, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू क्योर द डिजीज नेचुरली, बायोलॉजिकल बॉडी हैज इम्यूनिटी। अब इसको आप जैसे ये बता रहे हैं, तो ये अगर एक शब्द में कहें तो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी तो टोटल बॉडी का सार है ना, तो यही बात हो गई। जो हमारा शरीर दिख रहा है उसका बायोप्लाज्मिक बॉडी भी है, जीव द्रव्य शरीर भी है, और वो हमारा इम्यूनिटी है, उसके पास हमारी बॉडी के को अच्छे से संचालित करने की क्षमता है। Remediation method, sensitizing the hands, scanning chakras, cleansing, energizing and stabilizing and अच्छा, इसको हम कैसे किस तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे? तो इसके लिए हम अपने हाथ को, अगर हम कहीं भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब जैसे मैं एक्सपर्ट हूँ तो मैं तो तुरंत दूंगी ट्रीटमेंट, डॉक्टर जा रहा है कोई कैजुअलिटी हो गई तो वो तुरंत जूता नहीं खोलेगा, अपना टाई नहीं ढीला करेगा, तुरंत नब्ज लिखेगा वगैरह वगैरह। लेकिन आपके लिए जो स्टार्टिंग है तो उनके लिए कुछ चीजों को इन्होंने बताया है। सबसे पहले अपने हाथों को संवेदनशील बनाना है, सेंसिटिव बनाना है, इसके लिए हम कुछ आपको एक्सरसाइज बताएंगे। उसके बाद जब हमारे हाथ सेंसिटिव हो जाते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलने लगता है वाइब्रेशन, ऑरा को किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा देखा गया है, हर एक व्यक्ति का अपना ऑरा होता है, वो देखा गया है। और उसके बाद हम स्कैनिंग करेंगे, फिर चक्रों को शुद्ध करेंगे, क्लीजिंग करेंगे और कॉस्मिक एनर्जी को वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, फिर एनर्जी को स्थित करेंगे और जो टॉक्सिक निकालते हैं उसको हम डिस्पोजल करते हैं। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि when should the healer not heal, किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद बीमार हैं, जैसे होता है कि एलोपैथ में अगर डॉक्टर बीमार है तो ट्रीट कर सकता है क्योंकि उसका बेस दूसरा है, लेकिन यहाँ पे आपका बेस क्या है? आपको पहले ही मैंने बताया कि ये विद्या है, शिक्षा आप एक लिमिट तक ले सकते हैं। तो अगर आप खुद नेगेटिव हैं तो किसी को पॉजिटिव नहीं कर सकते, सिंपली आप ऐसे समझें। तो अगर आप खुद इमोशनली वीक हैं या फिजिकली अनफिट हैं या अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स वगैरह वगैरह लेते हैं तो कैसे करेंगे? क्योंकि इसका बेस ही स्पिरिचुअल है, मोरल है। मोरल जितना हाई होगा आपके पास एनर्जी उतनी अच्छी होगी, तभी आप एनर्जी दे पाएंगे। अच्छा, एनर्जी आपकी खुद की नहीं होती, आपको एनर्जी गेन करना होता है। गेन करने का मतलब है कि अगर आपका विश्वास ही नहीं है किसी भी, जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत से लोग होंगे ऐसा कि जो पहली बार सुन रहे होंगे, उनको यकीन नहीं आएगा तो उनका विश्वास भी नहीं होगा जल्दी। तो अगर डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, उस डॉक्टर में भी आपका विश्वास नहीं है तो भी आप कहेंगे बेकार गया। तो इस तरीके की चीजें इसमें भी हैं, इसके प्रिंसिपल्स में भी कार्य करता है। आप ये देख रहे हैं पिक कि ये एनर्जी किस तरह से प्रोजेक्ट की जा रही है। अच्छा, रिसोर्सेस। अच्छा, मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आप अपनी एनर्जी नहीं देते। देखिए, एक होती विद्या, विद्या में आप ये इन प्रकार आपके सामने जो आता है उसके प्रति आप समर्पित होते हैं। एक होती है शिक्षा, जितना दिया उतना लिया, फीस लिया दिया है। तो अब विद्या की बात है, ये कॉस्मिक हीलिंग, और इसमें डिग्री भी मिल रही है तो डिग्री एक लिमिट तक कार्य करेगा। तो ये अर्थ, वाटर, सन, वाइंड, स्काई, पंच तत्वों से हम लेते हैं। अब ये तो हमसे कोई फीस नहीं लेते हैं, तो इसलिए हमें भी अगर किसी को दे रहे हैं तो अपनी फीस को घटाना चाहिए वगैरह। तो ये जो एनर्जी हम अपने अंदर कलेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट करने के लिए कॉस्मिक, वो हम प्राप्त कहाँ से करते हैं? ये तो हो गई एक स्पिरिचुअलिटी की बात, आपकी पर्सनालिटी की बात, आपकी मोरलिटी की बात, आपके पास कितना है इसमें हमें कोई बात नहीं करना है, क्योंकि ये सबका अपना अपना है, अपना अपना कैरेक्टर है, इसमें कोई जाने की जरूरत नहीं है। बट निष्पक्ष रूप से आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? अर्थ से, वाटर से, सन से, वाइंड से, स्काई से। कैसे? पंच तत्वों से बना ये अधम शरीरा चिति गगन पावन अग्नि समीरा। तो पहले ही लिटरेचर में कहा गया है कि सूक्ष्म तत्व जो पंच तत्व हैं उनसे ये हमारा शरीर बना है। ईश्वर ने, गॉड ने, उस परम पिता ने पंच तत्वों को सब में समान रूप से दिया है और उसी में ये अधम शरीर मिलता है और उसी से बना है। तो कॉस्मिक एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं? यूनिवर्स से। अब यूनिवर्स की चीजें हैं ये पंच तत्व, तो अगर हमें अभ्यास करना है तो इन पंच तत्वों से हमारा कनेक्शन होना चाहिए।
तभी हम अपने पास एनर्जी को गेन करेंगे। तुरंत अगर किसी को देना है तो आप अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं, कितना पैसा है उसमें से देंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लेके देना है तब आप अकाउंट से देंगे, देख के देंगे वगैरह। तो इसी तरह से अगर आपके पास पावर है तो तुरंत आप ट्रीट कर देंगे, तो वो आपकी अपनी पॉकेट की एनर्जी गई। लेकिन अगर आप थोड़ा उसको आराम से ट्रीट करना चाहते हैं या थोड़ी ट्रीटमेंट लंबी है तो उसमें आपके पॉकेट में इतनी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बचेगी कि आप अपनी एनर्जी दूसरे को दे सके। तो इसके लिए आपको कनेक्शन बनाना होगा कि हमें दो और हम उसको दें। तो ये एक अभ्यास है, आगे चल के आप इसको देखेंगे कैसे किया जाता है। प्रतिदिन थ्रोट, लंग एंड स्प्लेन चक्रास को आप अपने स्वयं के चक्रास को एनर्जी से हील करते हैं, प्रेयर करते हैं और अपने गॉड के साथ कनेक्शन बनाते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो मैंने कहा, जब मैं हीलिंग करती हूँ तो मेरी अपनी एनर्जी बहुत कम लगती है, जब हमें लगाना होगा तभी हम लगाएं। तुरंत हम कनेक्शन से अपनी, जैसे कहते हैं ना, दूसरे से लेंगे फिर देंगे आपको, तो दूसरे से तभी तो लेंगे ना जब हम उससे रोज मांगेंगे, तभी तो वो हमारे मौके पे हमें देगा, अदरवाइज वो हमें देगा ही नहीं। तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए एयर, पृथ्वी मतलब वायु, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। और आप प्राणायाम करिए, आप जो प्रातः काल का वायु है उसका सेवन करिए, उस वायु तत्व को इस यूनिवर्स का मानते हुए उसके प्रति अपनी भावना को जोड़िए, उसको अपने अंदर लीजिए और प्रार्थना करिए कि जब भी हमें जरूरत हो हम आपके पास आए और आप हमें दें। ये एक कनेक्शन। ठीक इसी तरह से अर्थ, सोलर चक्र एंड बेसिक चक्र। अर्थ क्यों कहा गया? अर्थ बेसिक है, हमारा मूलाधार चक्र बेसिक है। अब यहाँ पे आप कहाँ पे ले रहे हैं? आप देखिए, यहाँ पे आप ले रहे हैं थ्रोट पे, एयर फ्लो कहाँ से होता है, आप थोड़ा कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे थ्रोट से ले रहे हैं, लेकिन अर्थ हमारा बेस है, मूलाधार चक्र। अब हम मूलाधार चक्र की तरफ खींच रहे हैं प्राणायाम के द्वारा, या अगर आपको प्राणायाम टेक्निक नहीं पता है तो आप नॉर्मली अपनी ब्रीथ को डीप ब्रीथ करके लेते हैं और अपनी भावना को जोड़ते हैं। पृथ्वी माता को आप पृथ्वी माता कहते हैं, पृथ्वी माता कहिए, अदरवाइज पंचतत्व यूनिवर्सल कंपोनेंट है, सभी उसको लेंगे अर्थ से। तो ये आप ले रहे हैं प्रतिदिन का, ये आपका प्रतिदिन का अभ्यास है अगर आपको कॉस्मिक हीलर बनना है तो। नेक्स्ट, सन। आपको जैसे कहा जाता है कि हाथों को ऐसे रब करें, सन के सामने दिखाएं और खींचे, बहुत एनर्जी आती है। अगर आप वीक होते हैं, किसी जैसे विटामिन डी की कमी होती है, क्यों कहा जाता है? सर्कुलेट क्यों होता है ना हमारी बॉडी में रेस, तो वो रेस जनरल है लेकिन वास्तव में वो बहुत अच्छा यूनिवर्सल पावर है। तो कैसे लेना है ये मैं पिक के द्वारा आपको ये बता रही हूँ कि हर एक भावना को हर एक तत्व के साथ कनेक्शन बनाते हुए आपको लेना है। साइज ऑफ चक्रास, जैसे हमने कहा कि हमारे 7 चक्र मेन बताए गए, उसके साथ 11 चक्र कॉस्मिक हीलिंग में है और कॉस्मिक हीलिंग में 11 के साथ साथ माइनर चक्र भी है। इन्होंने बताया है कि एवरेज साइज ऑफ द चक्रास इज 3 to 4 इंच, यानी कि एक एवरेज व्यक्ति का जो चक्र है वो 3 to 4 इंच होगा। जस्ट उससे आगे का जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसके 4 to 5 इंच, जस्ट टू प्रेयर के लिए इन्होंने 6, और जस्ट आगे के योगी मुनि ऋषियों के लिए इन्होंने 6 to 8 बताया। अब जिसके चक्र 6 to 8 होंगे उसका ऑरा और होगा, बड़ा होगा, और जिसके चक्र ही इतने छोटे होंगे उसका ऑरा भी कम होगा। तो जब आप अनहेल्दी होते हैं तो आपका जो ऑरा का एवरेज साइज 1 मीटर बताया गया है वो कम होता है। अच्छा, काइंड ऑफ कॉस्मिक हीलिंग, देखिए मैं थोड़ा आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने इसको जो कोविड काल था उसमें डिस्टेंस थेरेपी के रूप में मेरे माइंड में आया, तो मैंने इसका उपयोग किया और अच्छा लाभ मिला, और आज फिर वही उपयोग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रयोग कर रही हूँ। तो बहुत पहले भी हमारे ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से जो दिया जाता था तथा वस्तु कह के, क्या दिया जाता, रेज ही तो निकलती है। अभी भी तो आप देखते हैं सीरियल्स, नाटक वगैरह में रेज ही तो निकलती है। वो रेज क्या है? वो आपके माइंड में अगर आए तो हमारी अंदर की शक्ति, आपके जाने से कोई प्रसन्न हो गया तो ये आपके अंदर की शक्ति है, आपके जाने से कोई दुखी हो गया या आपके चले जाने से कोई दुखी हो गया तो ये आपके अंदर की शक्ति है। खैर, तो इसमें बताया गया है कि डिस्टेंस हीलिंग कितनी प्रकार से हम, एक तो फेस टू फेस, आप सामने बैठे हो, मैं सामने बैठी हूँ, हम आपको देख के ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा वर्चुअल,
वही जो आज हम यूज कर रहे हैं। और तीसरा ऑफलाइन, इसमें क्या था, जब पहले वर्चुअल नहीं था तो एक बार कनेक्शन बनने के बाद, एक बार पेशेंट को देखने के बाद हम उसका फोटो लेते थे और उस फोटो की हम ट्रीटमेंट करते थे। जैसे कि अगर कंधे में दर्द है तो हम यहाँ तक का उसका प्रॉपर फोटो रखते थे और फिर उसका ट्रीटमेंट करते थे, उसको आराम मिलता था। अब आप ये देखिए फेस टू फेस में इस तरह से एनर्जी दी जा रही है। सूक्ष्म है, सब कुछ सूक्ष्म है। योग में इसीलिए कहा गया ना सब कुछ सूक्ष्म है। रूट से इसीलिए स्टार्ट होता है ना योग, और इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिव नहीं कहते। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव जैसे कुछ लोगों ने कहा, तो आप लोग हमसे काफी सीनियर भी हैं इसमें, लेकिन मैं कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए बताना चाहूंगी, बेटा अल्टरनेटिव कुछ नहीं होता है। मेरा ये मानना अल्टरनेटिव कुछ नहीं होता है। अगर आपको तवा खराब हो जाएगा तो क्या प्लेट पे रोटी बन जाएगी? प्लेट जल नहीं जाएगा। प्लेट की अपनी पर्सनालिटी है, तवा की अपनी पर्सनालिटी है, मम्मी की अपनी पर्सनालिटी है, पापा की अपनी पर्सनालिटी है, तो कैसे अल्टरनेट हो सकती है? अगर आप मम्मी को मम्मी कह रहे हो तो मम्मी ही कहोगे ना, मम्मी को डैडी तो कहोगे नहीं। तो इसलिए अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो योग को अगर आप थेरेपी मान रहे हैं तो योग थेरेपी, इस थेरेपी के साथ आप एलोपैथिक करिए, इस थेरेपी के साथ आप होम्योपैथिक करिए, यूनानी करिए, सिद्धा करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन पैरेलल थेरेपी। हाँ, योग ऐसी थेरेपी है जो पैरेलल किसी अन्य के साथ चल सकती है, किसी भी थेरेपी के साथ चल सकती है। अगर आप एलोपैथ ले रहे हैं तो योगपैथी भी अगर ले रहे हैं तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता कि, लेकिन ये क्योंकि क्रियात्मक है तो ये इसलिए बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है। खैर, फेस टू फेस के बाद अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, काइंड ऑफ कॉस्मिक हीलिंग वर्चुअल आप देख रहे हैं। वर्चुअल का तरीका ये है। अच्छा, ड्यूरेशन पे हम आ जाए, कितना टाइम? 12 हो गया, 12:40 हो गया। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हम स्कैनिंग कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्टिंग एंड स्टेबलाइजिंग कॉस्मिक हीलिंग। फर्स्ट टाइम में आपको हाफ आवर लग सकता है, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट भी होता है, और डिपेंड करता है कि अगले की बीमारी क्या है। लेकिन अभ्यास करने के लिए इतना जरूरी है। आप ये देखिए, एक हेल्दी ऑरा और एक डांटे ऑरा। डांटे ऑरा मीन्स थोड़ा डिस्टर्ब ऑरा जो है। जब ऑरा डिस्टर्ब होता है तो ये जो बीच बीच में पैचेस दिख रहे हैं, जब हम स्कैन करते हैं तो हमें हाथों से पता चलता है। आपका हाथ इतना सेंसिटिव होना चाहिए इस अभ्यास के लिए कि आपको स्कैन करना अच्छे से आ जाए। अब ये जैसे आप पिक में देख रहे हैं, ये स्कैन कर रही है। अब ये ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर घुटने में दर्द है तो इन्होंने पहले क्लिंजिंग किया, फिर उसके बाद एनर्जाइजिंग। नेक्स्ट, हाँ, स्कैनिंग प्रोसेस में जो दोनों हैंड के बीच में रेज दिख रहा है, ये आपके हाथों से निकला हुआ रेज है। जब अभी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो तुरंत आप इसको महसूस करेंगे। तो इसके द्वारा हम स्कैन करते हैं ऐसे करके। अगर हमें यहाँ दर्द है तो हम ऐसे करके स्कैन करते हैं। कोई झूठ बोलता है तो भी पता चलता है, और हम स्कैन करने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं, गेस कर लेते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम है। अब ये घुटने का देखिए, यहाँ पे ये इसको जो है क्लेजिंग कर रहे हैं और उसके बाद एनर्जाइजिंग कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज भी थी खत्म, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, और इसके बाद आप लोग अपने स्थान पे ही बने रहिए, वहीं पर कंसंट्रेट होंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अभी जैसे आयुष मंत्रालय ने एक कॉन्सेप्ट दिया है वाई ब्रेक का, कि आप अपने चेयर पे ही बैठ के वाई ब्रेक लें, यानी कि योगा ब्रेक। जैसे आप लंच ब्रेक ले रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं, तो अभी आपको कहा गया है कि आप वाई ब्रेक दीजिए। तो ये आपका वाई ब्रेक का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और कॉस्मिक हीलिंग के लिए आपकी तैयारी भी हो जाएगी। आप खुद महसूस करेंगे और मैं भी यहाँ से ट्रीटमेंट दूंगी। तो ये 2 मिनट, अगर आप कहें बताएं, आप लोग जो होस्ट हैं बताएं, क्या 5 मिनट ब्रेक चलेगा?
ओके मैम। ओके। बंद करके बोला। हेलो। यस मैम। आवाज आ रही है? हाँ आ रही मैम। हाँ, आप सभी लोग अपने स्थान पे इस एक्सरसाइज को थोड़ा 5 मिनट का वाई ब्रेक मारते हुए करेंगे। यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और स्टार्ट करती हूँ। हैंड रोटेशन की है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताती भी चलूंगी। अपने स्थान पे आप सभी लोग बने रहे। अच्छा, अभी आई नहीं है, बंद करते हैं, दिख नहीं रहे लोग, थोड़ा वेट करें। ऑडियंस दिख नहीं रहे। आ गए आप लोग? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा, क्या आप सारे लोग हॉल में हैं? यस मैम। अच्छा, तो आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अपने स्थान पे आप लोग, अपने जो भी आप जहाँ पे भी हैं, आप इसको अगर स्थान कम है तो रोटेशन की एक्सरसाइज है, थोड़ा आप बैठ के ही कर लें। अगर आपको स्थान है तो आप अपने स्थान पे, क्योंकि देखिए आपको ऑफिस के लिए कहा गया है ना कि आप वाई ब्रेक लेंगे और वाई ब्रेक देंगे। तो वाई ब्रेक लेना, वाई ब्रेक देना क्या है कि आप एक योगा प्रोटोकॉल है वाई ब्रेक का, उसको फॉलो करेंगे दैट टाइम। जैसे आपको कहा जाएगा या आप अपने यहाँ बेल लगाइए वाई ब्रेक का, जैसे इंटरवल का लगाते हैं, जो जहां है वहां पर वो वाई ब्रेक स्टार्ट करें। दो हाथों को
कमर पे रखें, गर्दन को सामने की तरफ झुकाएं, धीरे से ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। जो जितना फॉलो कर सकता है करें, कोई बात नहीं। धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ डाउन करें। राइट लेफ्ट मूवमेंट हल्का हल्का दे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। यहाँ की नसों को खींचना है। आप अपने आप को इस वाइब्रेट के द्वारा एकदम कंसंट्रेट करें। आपका मन इस समय एकदम एकाग्र हो, तभी आपको कॉस्मिक हीलिंग समझ में आएगी। अभी आप खुद अपने आप को महसूस करेंगे कि कुछ एनर्जी आपको मिली है। बच्चों बिल्कुल मतलब मजाक नहीं है, आप एकदम सरप्राइज होगे। आप जैसे मैं कह रही हूँ थोड़ी देर एकदम वैसा ही फॉलो करो, आप बिल्कुल सरप्राइज होगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है वो बैठ के कर ले, अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो साइड हो जाए, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स कर सकते रूट टैग करेंगे। हाँ वाइब्रेट लीजिए, आप आपको करना ही है, बैठ के भी आपको करना ही। पाँच मिनट का है ये। एक लयबद्धता होनी चाहिए आपके इनहेल एक्सेल ब्रीथ और मूवमेंट के साथ। जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आप पीछे की तरफ गर्दन को घुमाते हुए लाइए, और जब आप आगे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेल करिए। एक रिदम होना चाहिए आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस के साथ। योग और एक्सरसाइज में अंतर है। अगर आप ब्रीथ को नहीं फॉलो करते हैं, आप देखते चलिए सुनते चलिए, अगर आप ब्रीथ को नहीं फॉलो करते हैं तो वो मैनुअली एक्सरसाइज है। जैसे आप प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो प्रोटोकॉल में स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप चलता है। लेकिन अगर आप प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बैठे उठते खाते फिरते जैसे भी करें, तो वो योगासन नहीं है, वो यौगिक क्रिया नहीं है। यौगिक क्रिया में हमेशा ब्रीथ का ध्यान रखा गया, इसलिए ही ये जिम्नास्टिक और एरोबिक्स जुम्बा डांस सबसे डिफरेंट है। अदरवाइज चाइना इतना अच्छा है, रूस इतना अच्छा जिम्नास्टिक करता है, लेकिन ज्ञान चक्षु सिक्स सेंस योग से ही खुलता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इसमें इतना डिफरेंस होगा। ब्रीथ जितनी फास्ट होगी आपका टेम्पर, तो आप शॉर्ट टेम्पर होंगे। ब्रीथ जितनी आपकी डीप होगी आप कूल होंगे। अब इतना भी कूल नहीं होना है ना कि आप सोते हैं तो एकदम सो गए, पता ही नहीं चल रहा है कुछ। कॉन्सियसनेस बढ़ाता है ये। आप एकाग्र हैं, जहां आपका फोकस होना है फट से आप फोकस आपका उधर जाएगा, फट से आपका ध्यान जाएगा। फॉलो करते रहिए, 5 मिनट का है। स्पाइनल को ट्विस्ट करना है, ट्विस्टिंग। अब आप बैठते हैं, वर्क कर रहे हैं या क्लासेस ले रहे हैं तो आपका सबसे ज्यादा दबाव आपके स्पाइनल पे आता है। वाई ब्रेक में अगर आप इस तरह का टिप्स लेके आप ब्रेक बनाते हैं अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, तो भी आपको बहुत फायदा मिलता है। 5 मिनट की एक्सरसाइज भी फायदा देती है, क्योंकि आपने ब्रीथ लिया ना, ब्रीदिंग प्रोसेस आपने क्लीन किया अपना ना। अब हम बोल रहे हैं तो हमारा जो बोलने के समय तो सभी के मतलब श्वास प्रश्वास इनहेल एक्सेल फास्ट हो, क्योंकि वो तो मूवमेंट के साथ चल रहा है। लेकिन जब आप रिलैक्स होते हैं तब सर्कुलेशन ऑक्सीजन आपके इनर बॉडी के सबसे छोटे यूनिट सेल तक
और अभी उथली उथली सांसें जस्ट एरी से निकल रही है, वो सेल तक नहीं जा रही। तो सेल तक जब जाती है, कोशिकाओं को जब एक्टिव करती हैं, तब जाके आपका सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, ऑक्सीजन शरीर में प्रॉपर सप्लाई होता है। और ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन क्या है, बॉडी की नीड है ना। अगर नीड नहीं होती तो फिर कैसे हम इस पर इतना फोकस करते। सूक्ष्म शरीर इन्हीं चीजों से बना हुआ है। लीजिए, सांस लीजिए, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचिए ताड़ासन के लिए, एकदम कंसंट्रेट। हर एक व्यक्ति इस समय अपने आप पे फोकस करो। अभी आप देखना आपको क्या मिलने वाला है, अपने आप पे फोकस करो। एक ये लास्ट आसन है वृक्षासन, जिसका जैसा कंसंट्रेशन होगा वो उस तरह से स्थिर होगा। डगमग डगमग, जल्दी गिर गए, चले, ये वो कंसंट्रेशन बिटवीन। वेरी नाइस, वापस आ जाइए। नेक्स्ट पैर से भी रिपीट कर लीजिए इसी तरीके से। ये आपका वाई ब्रेक कंप्लीट हो गया। वृक्षासन, आप लोगों को पता होगा कि राजा भगीरथ इसी आसन में तपस्या करके माँ गंगा को लाए थे, इसलिए गंगा का नाम भगीरथी भी है। हाँ बच्चों, अब आप लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया है। अब आप अपने ही स्थान पे देखिए, मैं थोड़ा आपको कोशिश करूंगी अपने ही स्थान पे बने रहिए और दोनों हाथों के बीच में जो स्वेट आया है उसको साफ करिए। रुमाल से साफ करिए या हवा से सुखाइए। हाथ को सुखाइए, हाथ को सुखाइए। बच्चे फॉलो करते रहो। हाँ, मैं चाहूंगी कि जो सीनियर्स बैठे हैं वो भी करें, ताकि तालमेल बना रहे कि जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो हो पा रहा है स्टूडेंट्स के साथ या नहीं। तो दोनों हाथों के बीच में जो स्वेट है उसको आपने ड्राई कर लिया, हाथों में सूखापन आ गया, ड्राइनेस आ गया। जो होस्ट है वो बोलते रहेंगे बच्चों की तरफ से, जो होस्ट हैं वो बोलते रहेंगे हाँ ना। हाथों में सूखापन आ गया? राहुल, 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 आप बताइए, आप वहां से कनेक्ट हैं, हाथ सबके ड्राई हैं? वेरी नाइस, बच्चों की आवाज आई। ठीक है, अब दोनों हाथों के बीच में 1 मीटर तक का गैप लीजिए। जैसे मेरा हाथ दूर तक जा रहा है स्क्रीन से, आपका भी हाथ जाएगा। अब हैंड डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा हैंड डिस्टेंस होना चाहिए। देख लीजिए, थोड़ा दूरी बना लीजिए। अगर हाथ आपस में लड़ने नहीं चाहिए, थोड़ा दूरी बनाना पड़ेगा। स्पेस है, थोड़ा दूर हो जाइए। 1 मीटर का हैंड डिस्टेंस ले लीजिए ऐसे दोनों साइड से, और 1 मीटर तक हर एक व्यक्ति का हाथ ओपन, धीरे धीरे। हो गया? अब धीरे धीरे पास लाइए बच्चों, स्टूडेंट्स। धीरे 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 हाथ को स्लोली स्लोली पास लाइए। नमस्ते। फिर ले जाइए धीरे 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 धीरे। 3 बार रिपीट करना है। सेकेंड टाइम एकदम स्लोली, और आपका ध्यान आपके वर्क पर, जो आप कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान। फील होगा तभी ना। बिल्कुल भूल जाइए अगल बगल कोई है, बिल्कुल। फिर धीरे 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 लाइए, स्लोली। थर्ड टाइम पास में लिया है। फिर हाथ ड्राई है ना, हाथ में पसीना तो नहीं है? दोनों पांव, दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने, धीरे धीरे लाइए, धीरे धीरे लाइए, धीरे 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 धीरे, स्लोली 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 स्लोली। रुक जाइए यहाँ पे, यहीं पर रुक जाइए। देखिए क्लोज नहीं हुए हैं, रुक जाइए यहीं पर
और फिर यहीं से दूर करिए, 2 2 2 आधे मीटर तक। फिर लाइए धीरे 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 धीरे। एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा, एक मैग्नेटिक फोर्स फील होगा। राहुल आप बताते चलिएगा प्लीज। जहां पे हो रहा है वहीं पर प्रेस करिए, नहीं जाएगा हाथ। जहां पे आपको मैग्नेटिक फोर्स फील हो रहा है वहीं पर हाथ को थोड़ा सा प्रेस करिए। दोनों हथेलियां आमने सामने होंगी, तो मैं दिखाने के लिए ऐसे कर दे रही हूँ, लेकिन दोनों हथेलियां आमने सामने। देखिए हमारा हाथ नहीं बढ़ रहा है आगे। सबसे पहले आपको उस मैग्नेटिक फोर्स को फील करना है। ऐसा लग रहा होगा कि हाथ पीछे की तरफ जा रहा है। यस, राइट। और जब आप अंदर की तरफ ला रहे हैं तो दबाव बन रहा है। ये है आपके हाथों से निकलने वाला रेस, आपके चारों तरफ के ऑरा। अब आप अपने ऑरा को स्कैन करिए, धीरे धीरे हाथ दूर ले जाइए। जहां पर आपका हाथ रुकेगा और अंदर की तरफ नहीं जाएगा, वहां तक आपका ऑरा है। ये एवरेज 1 मीटर है। आ रहा है? देखें। हाँ, ये रणधीर सिंह, डॉक्टर रणधीर सिंह, अब मैं देख रही हूँ कि आप बहुत सीरियसली कर रहे हैं, तो इतने स्टूडेंट से बात नहीं हो पाएगी। आप अगर माइक ऑन करें और मुझे बताएं, क्योंकि राहुल तो प्रैक्टिस कर नहीं रहा। ये डॉक्टर रणधीर सिंह, आपके हाथ के बीच में मैग्नेटिक फोर्स एक फील हुआ आपको? माइक माइक यस सर। फील हो रहा है आपको? जी जी, वेरी नाइस सर। ये कुछ और नहीं है, ये आपका ऑरा है। अगर ये 1 मीटर तक जा रहा है तो आप इस समय बिल्कुल हेल्दी हैं, और अगर ये 1 मीटर से कम में आके आपका हाथ रुक रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है। और कभी कभी आप देख रहे होंगे बच्चों कि कभी कभी जब आप 1 मीटर एकदम स्कैन कर लेते हो तो बीच में अचानक से हाथ इधर ऐसे धीरे धीरे पता चलेगा, तो वहां पे फॉल्ट है। ये आपको पता चल गया, आप सब लोगों को पता चल गया ना? यानी कि आपको मैंने विश्वास करा दिया कि आपका अपना ऑरा है और ये आप फील कर रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, इससे पहले आप लोगों ने फील किया था कभी? कोई बात नहीं। आप में से कोई भी रैंडमली अपनी कोई प्रॉब्लम मुझे बताए और स्क्रीन पे आए, जैसे राहुल जी के पास आए या फिर रणधीर सर के पास आए, जिससे कि मैं फेस टू फेस उसको ट्रीट कर सकूं। अगर आपको शोल्डर पेन है, अगर आपको हेडेक है, अगर आपको हैवीनेस फील हो रही है, या आप थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, बट डोंट एग्जामिन। हेलो, राहुल प्लीज कन्वे मैसेज। बच्चे क्या कह रहे हैं आप मुझे बताएं। राहुल, राहुल माइक ऑन करो। राहुल पटेल, Yes, ma'am. एनी पर्सन? हाँ हाँ सर, हाँ सर आप, हाँ सर आप एक स्टूडेंट को स्क्रीन पे ले आइए। गर्ल्स, बेटा नाम क्या है आपका? सरला शर्मा। सरला सर, हाँ सरला शर्मा। शैलजा। शैलजा, यस मैम। अच्छा शैलजा, मैं आपको अभी एक ट्रीटमेंट देने वाली हूँ। मैं स्क्रीन पे आपको लेती हूँ।
एक सेकंड, नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आप आ रही हैं, चलिए। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम मैं बचपन से asthmatic हूँ। ऑस्थमेटिक। यस मैम। अच्छा, और अभी अभी आपको सांस लेने में अभी प्रॉब्लम हो रही है? करेंटली नहीं है, हम्म, बट मेडिसिन लेती रहती हूँ। बेटा करेंटली अगर नहीं है तो अभी कैसे ट्रीट करेंगी? देखो अभी तो हम डेमो दे रहे हैं ना। मैंने ले लिया मैं है, आप, हाँ, इनहेलर मैंने ले लिया है, तो अभी ठीक हूँ। रोज इनहेलर लेते हैं आप? यस मैम। आप आपका देखिए लंबा बीमारी है, आराम तो आपको अभी भी मिल जाएगा, मैं भी ट्रीट करूंगा, अभी भी मिलेगा। लेकिन जो बीमारी लंबी है उसके लिए ट्रीटमेंट जैसे होता है ना, 2 दिन की दवा, 3 दिन की दवा, महीनों भर की दवा, ऐसा होगा। आराम तो आपको अभी भी मिल जाएगा, लेकिन आप अभी इनहेलर ली हुई हैं, तो अभी आपको कोई क्या सर में दर्द है, कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो ट्रीट करेंगी ना। बताएं, सर में दर्द है? आप जाएं, किसी फ्रेंड को बोलें जिसको प्रॉब्लम हो, बेटा आप बाद में मेरे से मिलना, जरूर आराम मिलेगा। आप कॉल नंबर ले लेना, आप जरूर जरूर आराम मिलेगा। Thanks. आप एक चेयर रखिए वहां पे, एक आप वहां पे चेयर रखिए। अगर किसी को सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो चेयर पे, अदरवाइज अगर पैर वैर में दर्द है तो आप उसको ले डाउन कर सकते हैं वहां पे, और स्क्रीन बस आप दिखाते रहिए हमें। हम तो ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं ना। फ्री में मिल रहा है तो लाभ लेना चाहिए ना बच्चों। कोई बात नहीं, कोई मैडम हो तो उन्हीं को बुला लीजिए, किसी की प्रॉब्लम होगी जरूर, ऐसा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट देखना चाहें। नो मैम। हाँ, हेलो, यस मैम। आपका नाम? सृष्टि दुबे। सृष्टि, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली माइग्रेन है, माइल्ड केस है। अभी अभी दर्द हो रहा है सर? हाँ। एक चेयर पे बैठिए और आप बिल्कुल स्क्रीन पे दिखिए अच्छे से। बीच में आना चाहिए ना, जहाँ पे एकदम लोगों के पास आए, जिससे कि हमें एकदम बीच में सेंटर में दिखे ना। आप देखिए, आपके यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है तो आपको पता चल जाएगा। मैम दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। हाँ राहुल, जहाँ पे राहुल है, जहाँ पे राहुल आप खड़े हैं वहां पे आए, उनको ले आइए। अच्छा हाँ, ये भी दिख रहा है लेकिन ये दूर है थोड़ा ना। अच्छा हाँ, तो सोफे पे आपने बैठा दिया, आप स्टेज पे चेयर रख दीजिए। ठीक है। इधर ही आ जाओ। मतलब स्क्रीन के पास आना चाहिए ना आप स्टेज पे एक रखिए। चेयर चेयर नहीं है क्या? ऐसे थोड़ा उसको, सर में दर्द हो रहा है ना, तो थोड़ा उसको ऐसे आराम से बैठना है। एक टेक लेके बैठेगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। है कुछ? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
माइग्रेन माइग्रेन का दर्द बेटा या तो लेफ्ट होता है या तो राइट होता है या कभी पूरे सर में हो रहा होता है। हाँ अगर पीछे, हाँ ये वाला, हाँ ये, हाँ साइड में रखिएगा, सुनिए, हाँ चेयर 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 को ऐसे साइड कर दो, ये हाँ, और पूरा 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 साइड कर दो, ये वेरी गुड, हाँ बस। लेफ्ट या राइट किधर है दर्द? हाँ बस इस पोर्शन में है। अब देखो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बस दिखाने का, ऐसे एकदम, ऐसे जो जिस पोर्शन में दर्द है ना उसको ऐसे करके एकदम, हाँ लेफ्ट में है ना, इस तरफ है ना, तो फिर उधर से बैठना चाहिए था। चलो अच्छा अब आराम से बैठो, आराम से ही बैठो, कोई बात नहीं, मैं फुल फुल हेड लेती हूँ। बैठ गए हो ना आराम से एकदम, आंखें बंद कर लेना, और आपको फील करना है आपका रिसेप्टिंग पावर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम वर्चुअल आपको हील करेंगे। तो आपका रिसेप्टिंग पावर ये कि अभी आपने फील किया, आपके हाथ में फील हुआ था, फील हुआ था, आपको ऐसा लगेगा कि वहां से टॉक्सिक निकल रही है, और निकलने के बाद फिर हम उसको फेंकेंगे, और फिर जब न्यू हीलिंग होगी, न्यू कॉस्मिक एनर्जी वहां पे प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए आंखें बंद करके आप आराम से एकदम रेस्ट हो जाइए, और बस ध्यान ये रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा हो रहा, आप जिधर से पार्टीशन किए वो लेफ्ट हुआ ना, लेफ्ट वो उस साइड का लेफ्ट है, तो इधर से बैठ जाइए, ये तो राइट हुआ ना, पता नहीं हो सकता अब इधर बैठेंगे तो ये राइट हुआ ना। ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस बस अब उधर देखिए, साइड साइड, हाँ स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, सामने देखिए, साइड पोर्शन इधर रहेगा, बस 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 एकदम। अब आपको स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, अपने सामने देखिए, जहां दर्द है बस वो दिखना चाहिए, तो बिल्कुल टच नहीं है, कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस थेरेपी है। कंसंट्रेट योर माइंड ऑन योर पेन, जहां दर्द है अपने मन को वहां पे रखें, जिससे जो भी कॉस्मिक एनर्जी वहां दी जाए वो आपको फील हो। सबसे पहले मैं स्कैनिंग कर रही हूँ, यहीं से स्कैनिंग कर रही हूँ। बैक पोर्शन से आपको सर के पिछले भाग से कान की तरफ हैवीनेस लग रहा है। जो टॉक्सिक हम निकालेंगे उसको फेंकने के लिए आपके पास सॉल्टी वाटर होना चाहिए, जो आप निकालेंगे उसको सॉल्टी वाटर में डिस्पोजल करेंगे। और अगर तत्कालिक रूप से सॉल्टी वाटर नहीं है आपके पास, तो आप एक इमेजिन बॉल बनाते हैं, उसमें करते हैं, वो आप लोग नहीं करेंगे, जो न्यू है वो नहीं करेंगे, न्यू लोग सॉल्टी वाटर रखेंगे अपने बगल में, नेगेटिव एनर्जी उसमें डालते जाएंगे। 1 सेकंड आप टाइम दीजिएगा, मैं वाटर लेकर
ये वाटर है, आपको दिख रहा होगा, इसमें सॉल्ट पड़ रहा है। मैं इसको अपने लेफ्ट में रख रही हूँ, राइट में, और मैं अब यहाँ का जहां इनको दर्द हो रहा है, जो इन्होंने बताया है, जो मैंने स्कैन किया है, हाथों को हमेशा इस तरह से झड़क लेने से और आपके एक्टिव हो जाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? हाथ दिख रहा है मेरा? हाथ नहीं दिख रहा होगा। जो हाथ है इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज, मैम दिख नहीं रहा आपका। हाथ नहीं दिखेगा क्योंकि मैं उसके चेहरे पे घुमा रही हूँ ना। पास जाऊंगी तभी होगा ना। चलिए देखिए ऐसे। अब दिख रहा होगा। अब मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ, आपकी नेगेटिव एनर्जी मैंने निकाल दिया है। मैं कंसंट्रेट हो रही हूँ, आप भी कंसंट्रेट होइएगा। धीरे से आंख खोलें। आंख खोलने के बाद जहां आपको दर्द था, गर्दन घुमाएं और अच्छे से उस स्थान को चेक करें। ऐसे ऐसे करें, चेक करें, दर्द करें। आपको हल्का महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत लाइट है। लाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक गुरुदेव। आप में से कोई और भी इसको आजमाना चाहे तो देख सकता है। और आप 2 घंटे तक, बेटा, हेलो सृष्टि या श्रुति, आप 2 घंटे तक रीड करिएगा। 2 घंटे तक आपको बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा। और आप आपके जो टीचर होंगे उनको बताइएगा, मेरा नंबर लीजिएगा। अगर आपको 2 घंटे तक बहुत गुड फील हुआ है तो आप मुझे 2 लाइन मैसेज जरूर करिएगा। फिर नेक्स्ट अगर आपको जरूरत होगी तो हम देखेंगे। आप में से कोई सीनियर, मैं चाहती हूँ एक्सपीरियंस करना चाहे, आपको इनका बाइट लेना चाहिए। राहुल जी, मंच पे आपको इनका बाइट लेना चाहिए, इन्होंने जो फील किया। और नेक्स्ट आप में से जो भी स्टूडेंट हैं, आप में से कोई और बताओ।
बहुत लाइट फील हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, बहुत हैवी हैवी सा था। अभी प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज्यादा लाइट। ओके, थैंक यू सो मच। मैं किसी सीनियर को चाहती हूँ कि कोई सीनियर आए, आपको भी पता चले, जिससे कि ये योग विद्या ऐसे ही नहीं विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें सिक्स सेंस को जागृत करने की शक्ति है। और आप जानते हैं कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यूं ही नहीं कहा गया है बजरंगबली को। तो हम बूंद के भी एक अंश होंगे। हमारे पास जो विद्या है वो ईश्वर की कृपा से है, और वह भी बूंद का कोई एक अंश होगा, बूंद के अंदर का भी कोई बूंद होगा। तो मैं चाहूंगी कि आप में कोई और बड़ा व्यक्ति ये नहीं लगे आपको कि हमने किसी बच्चे को ट्रेन किया, इसलिए मैं कह रही। एनीवन? कोई बात नहीं। हाँ, पीछे स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कहाँ पेन है या कुछ, हम क्या करें, आप किसी भी तरह से संकोच कर रहे हैं, तो एक आइडिया है अपने बॉडी को मेजर करने का। आप अपने जॉइंट चेक करिए, आप अपना नेक पीछे चेक करिए, देखिए आप अपने घुटने चेक करिए, एंकल्स चेक करिए, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लगभग कितना हो गया, 130 122 हो रहा है। अभी हमारे पास कुछ और समय है, आपकी कोई क्वेरी है वो भी ले सकते हैं, और अगर बीच में कोई ट्रीटमेंट के लिए कहा तो हम ट्रीटमेंट भी देख लें। मैम एक क्वेरी है सर की। हम्म। हेलो मैम। नमस्कार, आपका नाम? अविनाश पाल। अविनाश, पाल। स्टूडेंट हैं आप या टीचर? नो मैम, फैकल्टी में। अच्छा, फैकल्टी, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैम बैक पेन हो रहा है यहाँ, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आपको पेन हो रहा है? बैक पेन। बैक पेन ना? जी मैम। वहां पे लेटने का स्थान है? नो मैम। क्यों नहीं, आप मंच पे लेट जाएंगे ऐसे। स्टमक हाँ, बैकलिंग या बैकलिंग नहीं, स्टमक लेइंग करेंगे तभी बैक पोर्शन पर आएगा ना। मैम बैक लेटने की तो वो अरेंजमेंट नहीं है, बैठ के। तो ठीक है, चलिए बैठिए आप, बैक पोर्शन आपका हम स्क्रीन पे आना चाहिए। और लेफ्ट राइट जो भी है, किस टाइप का पेन है पहले ये भी, हाँ बैठ लीजिए पहले, फिर बात करते। हाँ, एक सेकंड पहले थोड़ा बात कर लीजिए। ये जो पेन है वो आपका पेन कब से है, किस टाइप का है? कोई चोट लगी? नो मैम, चोट नहीं है, कभी कभी हो जाता है। कभी अभी हो रहा है? कभी कभी हो बाइक जाता है ड्राइव करने की वजह से कभी कभी हो जाता है। और अभी हो रहा है ना? हाँ मैम, अभी है। आप अपने हाथ से पीठ पे ऐसे हाथ रखिए। हाँ, घूमिए घूमिए घूमिए, हाँ बता सकते हैं आप। हाँ, कौन सा पोर्शन? हाँ, थोड़ा और पीछे जाइए। हाँ, ये हाँ, थोड़ा और पीछे, ये वेरी नाइस। अब बैठ जाइए आप। हाँ, बैठ जाइए चेयर पे। स्क्रीन पे आपका कमर आना चाहिए। हाँ, थोड़ा और स्क्रीन दिखाइए राहुल। हाँ, थोड़ा और स्क्रीन ऊपर करिए। हाँ, थोड़ा और स्क्रीन ऊपर करिए, ये बस। लेफ्ट पोर्शन है ना ये वाला? हाँ ठीक है, जहां पे आप हाथ रख रहे हैं। आप एकदम मन को कंसंट्रेट करिएगा। मन को कंसंट्रेट करने का तात्पर्य ये है कि जब आपको एलोपैथ में इंजेक्शन लगाते हैं तो डाइवर्ट करते हैं कि आपको पेन फील ना हो।
और हम आपको कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आपका जो पेन है वो आपको फील हो। तो जब वो पेन जाएगा तब पता चलेगा आपको ना। हाँ, जो पेन है उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। स्टार्ट कर। हमारे पास ये वाटर है, हमारे पास ये वाटर है पहले की तरह से, और हमने इसको यहीं पर रखा हुआ है, और हम जो टॉक्सिक निकालेंगे उसको इस वाटर में ही देंगे। पहले स्कैन करते हैं। आपको जो दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, पीठ की तरफ, ना कि हिप की तरफ। हमारी स्कैनिंग में वो आपके पीठ की तरफ जा रहा है। यस मैम। ठीक है। मैं आपको कॉस्मिक एनर्जी दे रही हूँ, प्रोजेक्ट कर रही हूँ वहां पे। आंखें खोलिए, दर्द को चेक करिए। बेंडिंग लीजिए, बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग लीजिए। सामने फेस कर लीजिए। हाथों से दबा के ऐसे चेक करिए।
जहाँ पे दर्द था, और बेंडिंग लीजिए। पहले आप बेंड को पा रहे थे, कितना बेंड हो रहे थे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड, साइड बेंडिंग भी लीजिए। दर्द से पहले आप इतनी बेंडिंग चेक किए थे? इतनी बेंडिंग हो रही थी? नहीं मैम, चेक तो नहीं किया था, बट अभी काफी हल्का फील हो रहा है। आप और माइक मैं फोर्स, जब आप कह रही थी कि मैं हील कर रही हूँ, तो एक फोर्स फील हो रहा था जहाँ बैक में। थैंक्स गॉड। बहुत अच्छा आ रहा था वाइब्रेशन। सब ईश्वर की कृपा है। थैंक यू। अब आपने बोल दिया, वहां पर लोगों को बोल दिया जी मैम, ऑडियंस में? ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट कोई क्वेरी है या फिर कोई और ट्राई करना चाहे? देखिए, योग विद्या में कह रही हूँ ना कि हम इसके कोई, हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, और विवेकानंद अभी कोई सामने नहीं आए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत भूमि में जहाँ इतने बड़े योग ऋषि मनीषी हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ, ठीक है, रामदेव बाबा जी आए हैं, बहुत सारे पहले के योगी भी आए हैं, महर्षि महेश योगी ने तो विश्व में पताका ही फहराया था सबसे पहले योग का। लेकिन हमने जो अनुभव किया है अपने योग की पढ़ाई में और योग के एक्सपीरियंस में, कि जो वास्तव में होता है ना, वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो बिकता है। ये बात है। तो जो दिखता नहीं है उसको कहाँ हम ढूंढने जाएंगे? तो ये जो विद्या है ना, ये दिखती नहीं है। आप दिन ढूंढा दिन पाइया गहरे पानी पैठ, और जो ढूंढेगा उसको मिलेगा। अब मेरा कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और मैं इसका कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, लेकिन आप में से जितने लोग आज यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, हमसे सीनियर भी बैठे हुए हैं, आप नंबर नोट कर लीजिएगा और आप देखिएगा। आप अपने घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम किसी को होगी तो आप देखिएगा। यूं ही नहीं है कि इस वर्कशॉप में हमने कर दिया तो फिर बाद में काम नहीं करेगा, और फिर आपको एहसास होगा कि योग विद्या कितनी बड़ी विद्या है, और जिसके पास है, चाहे वो उसका बूंद का कोई भी अंश हो, उसमें उसकी बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी यात्रा है। आप में से कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं बच्चों, आप में से कोई क्वेश्चन कर, स्टूडेंट्स, अगर आप में कुछ ऐसी जिज्ञासा हो, खुल के बोलिए, बात करिए। जैसे कोई आपकी क्वेरी है क्या? है, जैसे आपका सेशन चलता है, अगर देखिए होता क्या है कि कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं होगा कि ये ऐसा मतलब थेरेपी हो भी सकती है, तो इसलिए भी वो नहीं बोलेंगे। तो जिनको नहीं विश्वास है उनको भी मैं प्रूव करूंगी कि आप कैसे विश्वास कर सकते हैं। चाहती हूँ, आपके यहाँ क्या कोई लेडीज नहीं है? बॉयज कॉलेज है क्या ये? नहीं नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ, मुझे पता नहीं था ना। क्योंकि अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को पक्षपात जैसा लगे। जी मैम। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट माय सन, एज सर सेड दैट ही इज हैविंग सम प्रॉब्लम इन हिज नी। जैसे सर ने बताया उनके घुटने में प्रॉब्लम है। सो फ्यू डेज बैक मेरा बच्चा भी खेल रहा था एंड ही गॉट हर्ट समवेयर इन हिज नी, and right now he keeps complaining the same thing. So definitely I'm going to practice the same thing what you are doing right now with our classes. ओके, तो अभी अभी ये मतलब क्या लग रहा है आपको कि अभी ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको स्टूडेंट्स मैम के लिए? मुझे अरे प्रॉब्लम नहीं है, लाइक द प्रॉब्लम इज विद माय सन। हाँ 11 हाँ, साल बच्चे का ही तो, बेटा है। अभी तो बच्चा नहीं है ना यहाँ पे। हाँ यहाँ पर है नहीं, दैट्स व्हाई आई कांट कॉल हिम इन फ्रंट ऑफ। यही कह रही हूँ कि बच्चे के लिए तो अभी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकती हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बच्चे का तो ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब दिखाइएगा, देख लूंगी, कर लूंगी। आप लोगों में से किसी को सिर्फ रिचार्ज होना है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ फ्रेशनेस महसूस करना चाहते हैं, आपको ही देख लेते हैं मैडम। आप सुबह से इस कार्यक्रम के लिए लगी रही होंगी, लोगों को कलेक्ट किया होगा, मैनेज किया होगा, बैठाया होगा, एक थकान फील हो अंदर से, और आपको लगे कि एकदम फ्रेश हो जाएं,
तो फ्रेश होने के लिए हम आपको हेल Thank you, करते हैं। ma'am. ठीक है, आप आराम से बैठ जाइए, ऐसे ही कोई बैक वाला चेयर ले लीजिए और फेस टू स्टमक का पोर्शन आपका दिखना चाहिए, जितना हमारा दिख पा रहा है स्क्रीन पे ऐसे ही। हाँ ठीक है, हाँ थोड़ा सा, हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा और डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा, या तो चेयर इधर करिए, आगे करिए, आपके हेड हेड ना ऊपर जा रहा है, हेड है स्क्रीन, ये बस बस बस, वेरी नाइस। बिल्कुल आप आंखें बंद करिएगा और आप कंसंट्रेट होइएगा अपने पर, आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई दर्द है नहीं, आपको फ्रेशनेस फील होगा। ठीक है, जब मैं टॉक्सिक निकालूंगी और जब मैं कॉस्मिक एनर्जी हील करूंगी, दोनों आपको पता चलेगा। ठीक है, आप आंखें बंद कर लीजिए, मैं भी कंसंट्रेट होती हूँ। हमारी जो चक्रास हैं, मैं थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैडम आप आंखें बंद करिए, मैम आप अपने पे कंसंट्रेट रहिए। चलिए अच्छा, मैं बाद में बोलूंगी, क्योंकि आपको कोई पेन नहीं है ना, इसलिए मैंने बोला कि जो आपके चक्रास हैं, आपको पता है, उन चक्रास पे आप घूमते चलिए। जैसे मैं बोल रही हूँ, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, दोनों भावों के मध्य में आज्ञा चक्र, जिसका संबंध मेंटल प्रेशर, मैं आपको कॉस्मिक एनर्जी दे रही हूँ।
आंखें खोलिए मैडम। कैसा फील हो रहा है आप बताएं। बहुत लाइट काम। काम फील हो रहा है। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। स्वीकारो मेरे प्रणाम, स्वीकारो मेरे प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। हम सबके शरीर के मंदिर में हमारा ईश्वर, हमारा इष्ट, हमारा आराध्य होता है और हमारा ये शरीर ही हमारा मंदिर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप किसी के भी उपासक हो, किसी के भी पूजा करने वाले हो, हृदय में विराजता है जो हमारा दिव्य शक्ति, वही हमारी एनर्जी है और उस एनर्जी के हम अंश हैं। दोनों का कनेक्शन है, हम उसे ही बार बार प्रणाम करें। थैंक यू सो मच। If any question, please ask. Yeah, students, if you have any query, any questions related to the therapy, please come up. अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो please you can put your questions right now because आपके पास अच्छा मौका है. You can have your interaction directly with ma'am because ये मौका बार बार नहीं आता है. So if you have any query, मैम आई थिंक घर पे जाकर सब लोग अपने अपने पेरेंट्स के साथ ये थेरेपी ट्राई करेंगे. ये दो इनके पास अभी कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन आई एम श्योर दे आर गोइंग टू ट्राई दिस एट होम. बिल्कुल। मैं आपको थैंक यू एक वेरी छोटा मच सा, मैम. बिल्कुल मैं एक छोटा सा बताना, आप लोग ट्राई करेंगे। सेल्फ हीलिंग आप कर सकते हैं। जो आपने थोड़ा फील किया, आपने स्कैन किया, आपने देखा कि एंटी क्लॉकवाइज हम टॉक्सिक निकालते हैं और उसके बाद हम वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं पॉजिटिवली, तो आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। आप किसी और पे मत करिएगा, क्योंकि जब तक चीजें अच्छे से आपको समझ भी ना आ जाए, आप अच्छे से प्रैक्टिस ना करें तो ना करें। क्योंकि अभी आपने लिया है, फील किया है, आप सेल्फ हीलिंग करिए। कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि जब आपको लगेगा कि आपको सीखना चाहिए, तब आप सीखिएगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों को। हमारे प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंसली सुनते रहे। और बच्चों, मैंने भी ऐसे ही सीखा है अपने गुरु और गाइड और टीचर्स के द्वारा, और आप लोगों ने भी आज हमें अवसर दिया। जो हमारे सीनियर्स हैं KIPM टेक्निकल मैनेजमेंट कॉलेज के जो कमेटी मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, जिनको मैं ठीक से जान नहीं पा रही हूँ, बाई फेस तो देख रही हूँ, एक रणधीर सर जी दिख रहे हैं, आगे कुछ सीनियर्स दिख रहे हैं। एक जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, कोई मोहम्मद जी, आप हैं बैठे आगे? हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहाँ से सोर्स लिया मुझे नहीं पता, धीरे धीरे बाद में पता चला, और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मैं Thank you, ma'am. Even we feel blessed to have a wonderful session with you, ma'am. Today, in a very precise manner, you have told us how a healthy mind dwells in a healthy body. That's very true, ma'am. Today, you have made us understand the difference between yoga and exercise yeah, and the cosmic therapy, yeah, about which we were just hearing. Today, we got to see directly. It's just because of you. So thank you so very much, ma'am. Your not presence is just highly appreciated. Thank you for making time for us. So on behalf of entire KIP family, I would like to give thanks once again, ma'am. Thank you for thank you. joining us this afternoon. Thank you so very much. Thank you for this great opportunity, and thank you especially for Mohammed ji coordinating such a nice program, and thank you all my seniors for giving a great opportunity to me. Thank you. Okay. Thank Okay.
ओके, लीव। इजाजत है? चलिए। So now with this, our session has come to an end. And now I would like to wind up the session by conveying my thanks to all the dignitaries sitting over here. Thank you, sir. And thank you all the students once again for joining this wonderful session. I'm sure this is this would be proved a very educational session for all of us, because it is not only about keeping how we can live a hale and hearty life, but yes, for our future also, it is a wonderful thing which we have learned today. And I think we need to keep all this thing in our mind. So thank you once again to one and all present over here. Thank you, sir. And thank you all the dignitaries. Thank you so very much. Thank you. Yeah, now students, you people can move to your class. The classes are going to resume shortly. So all of you, please kindly leave the class. And faculty members will stay back.